Dear parents and student, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6th, subject Geography, Chapter 3, Lecture number 6. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अपनी नोटबुक में लिखें. जब स्कूल ओपन हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से डिस्कस करें. Activities of chapter number 3, page number 36, query corner. Number 1, match the following. A. Amazon. 6. Silvas. Nile, longest river of Europe. Ganga, Gangotri Glacier. Second. R. Yangtze. I. 1. Three Georges Dam. River Mississippi. 8. North America. River Danube. 3rd. Black Sea. River Ob. 10. Arctic Ocean. River Indus. 5th. Arabian Sea. River Huangho. 7. China. River Volga, longest river in the world. Complete your work fast. Next, page number 36. Answer in one or two words. A. The deepest point of the earth and its location. Earth का deepest point कौन सा है और इसकी location क्या है? Mariana Trench in the Pacific Ocean. B. A group of island in the Pacific Ocean. Pacific Ocean में कौन सा group of island है? Polynesia, Micronesia और Melanesia. The ocean that is the busiest of all oceans. सारे ocean में सबसे busiest कौन सा ocean है? Atlantic Ocean. The ocean surrounded the North Polar and South Polar region respectively. कौन सा ocean है जो कि South Polar और North Polar दोनों से surrounding है? North Pole Arctic Ocean, South Pole Southern Ocean. The largest salt water lake of the following. Salt water lake कौन सी है? Caspian Sea. A river in England that form an estuary. Thames river जो है वो estuary form करती है. G. The famous waterfall between Lakes and Erie and Lake Ortenio in North America, Niagara Falls. Niagara Falls. Niagara Falls. The deepest freshwater lakes in the world, Lake Baikal. The lake near the Africa Rift Valley. Africa Rift Valley के नियर पास में कौन सी लेक है? Lake Victoria. The largest freshwater lake of Europe, Lake Lagoda. यूरोप की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? लगोडा. Question answers of chapter number 3, water bodies. Differentiate between bay and gulfs. Answer: bay, sea water enclosed by land on three sides leaving a wide mouth is called a bay. For example, the Bay of Bengal.
सी वाटर मीन्स लैंड है, 3 साइड वाटर है सी के, और एक साइड जो बिग माउथ है, मतलब सी शेप कह सकते हैं हम उसे। हम क्या कहेंगे? बे। फॉर एग्जाम्पल द बे ऑफ बंगाल। गल्फ, a gulf is a water body that enters deep inside the land. For example, the Gulf of Mexico. गल्फ मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि एक वाटर बॉडी, ठीक है, वाटर बॉडी है, मीन्स सी का वाटर ही होता है उसमें, ऐसे वो लंबा है, ठीक है, चौड़ाई उसकी कम है लेकिन लेंथ ज़्यादा है, ऐसे सकड़ी कोई वाटर बॉडी होती है, दैट इज़ कॉल्ड गल्फ। एग्जाम्पल द गल्फ ऑफ मैक्सिको। बी, सी एंड ओशियन। Sea are smaller than oceans and are usually located where the land and ocean meet. Example, the Arabian Sea. जहाँ पर लैंड और ओशियन मीट होते हैं उनके बीच में क्या होता है? सी होता है। सी ओशियन से छोटे होते हैं। Oceans are larger than seas and cover almost 3/4 of the Earth's surface. Example, Pacific Ocean. Oceans are larger than sea and it covers almost 1/3 quarter of Earth. मतलब अर्थ का जो 1/3 एरिया है वो क्या है? वाटर है। Marginal sea and inland sea. And sea is divided in two types, marginal and inland. Marginal sea are large water bodies along the continental edges or margins. मार्जिनल सी कौन से होते हैं? जो कि वाटर बॉडीज होती हैं कॉन्टिनेंटल ईजेस, मीन्स कॉन्टिनेंट की ईजेस पे जो वाटर बॉडीज हैं, जो वाटर है सॉल्ट वाटर, उसे हम सी कहते हैं। एग्जाम्पल, बेरिंग सी। इनलैंड सी, some lakes are too big to be called, so therefore they are known as inland sea. For example, the Caspian Sea. ऐसी लेक्स जो बहुत बड़ी है, जो बहुत बड़ी लेक्स होती है, उन्हें हम कहते हैं इनलैंड सी। Deltas and estuaries. Deltas are triangle shaped alluvial deposit at the mouth of the river. डेल्टा क्या होता है? जब रिवर का एंडिंग पॉइंट है या बिगनिंग पॉइंट है, हम एंडिंग पॉइंट लेते हैं, है ना, तो जब वो डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूटरीज में जब बीच में ऐसे छोटे छोटे आइलैंड जैसे बन जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेल्टा। An estuary is an open river mouth where the fresh water of the river meets the saline water of the sea. Estuary क्या होता है? मीन्स जो वाटर रिवर का आ रहा है ना, रिवर एज इट इज सी वाटर में मिक्स हो रही है, उसे हम कहते हैं एस्चुरी। मतलब वो चैनल्स में डिवाइड नहीं हो रही है। रेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रूव फॉरेस्ट. The rainforests are found in heavy rainfall areas. Where it founded? In heavy rainfall areas. Means ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ पर पूरे दिन रात कभी भी रेन हो सकती है, और वहाँ पर ऐसा कोई सीज़न नहीं होता है समर विंटर रेनी, वहाँ पर बस वो रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर सिर्फ रेन होती है उन फॉरेस्ट में। द मैनग्रूव फॉरेस्ट आर फाउंड इन द मर्शी एरियाज. मर्शीज एरिया में कौन सा होता है? मैनग्रूव फॉरेस्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस वेजिटेबल होंगी, वहाँ पर वेजिटेशन होती है। Question number 4. Give reason to explain each of the following. Number A. Fresh water is extremely precious to us. Why fresh water is extremely precious to us? Because it is essential for survival of all living beings. हमारे survival के लिए, I don't know आपको पता है नहीं पता है, but एक person के लिए, in case अगर वो कुछ नहीं खाता है, ठीक है, अगर आप कुछ फूड नहीं इनटेक करते हो,
तो भी आप सर्वाइव कर सकते हो, बट अगर आप वाटर इनटेक नहीं करते देन यू कांट एबल टू सर्वाइव. सो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेश वाटर. बी, वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर ड्रॉपलेट्स इन द अपर एटमोसफियर. वाटर वेपर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होती है अपर एटमोसफियर. उससे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाटर इवेपरेट्स as water vapor which bring light in weight, rise in the air and condenses into tiny water droplets that join to form clouds. सबसे पहले क्या होता है? वाटर इवेपोरेट्स होता है एज अ वाटर वेपर. फिर वो जैसे जैसे उसका वेट लाइट होता जाता है तो फिर वो बहुत सारी वाटर वेपर मिक्स होके एक क्लाउड का फॉर्म ले लेती है. द अटलांटिक कोस्टल लाइन हैज़ सेवरल नेचुरल हार्बर्स. अटलांटिक कोस्ट लाइन पे बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स. हार्बर मैंने क्या बताया था? पोर्ट, शिप पोर्ट, नेचुरल बने हैं वहाँ पर. बिकॉज इट्स कोस्ट लाइन आर हाईली इंटेंडेड एंड इरेगुलर इन शेप. बिकॉज वहाँ की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर है शेप में, उसकी शेप प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए वो बहुत सारे छोटे छोटे वहाँ पर ऐसे बने हुए हैं पोर्ट्स. वाटरफॉल्स आर कॉमन इन माउंटेनियस एरिया. माउंटेनियस एरिया में वाटरफॉल बहुत कॉमन है. ऑब्वियसली जो वाटर है वो अप डाउन ऐसे ही फ्लो करेगा तो वाटरफॉल होंगे. बिकॉज वाटरफॉल आर फॉर्म्ड व्हेन द वाटर फॉर्म ग्लेशियर्स और रिवर फॉल्स फ्रॉम द ईज ऑफ द माउंटेन. माउंटेन एरिया से एक तो रिवर्स का फ्लो भी बहुत ज़्यादा होता है, प्लस वो हाई लो चलता है, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट डू वी मीन बाय हाइड्रोस्फीयर? व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? द हाइड्रोस्फीयर इज द ओशियन, सीज, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स. हाइड्रोस्फीयर का पार्ट्स क्या क्या आता है? जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है. ओशियन हो गया, सी हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया. नेम द चीफ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन आवर प्लैनेट. हमारे प्लैनेट पे फ्रेश वाटर का क्या सोर्स है? रेन, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ग्लेशियर्स. ये 5 चीज़ें हैं जो वाटर का सोर्स है. नेम द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव साइजेस. ओशियंस का नेम लिखना है बट उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग. लाइक सबसे पहले पैसिफिक ओशन, देन अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन. ये उनके साइज़ के अकॉर्डिंग उनकी सीरीज़ है. वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट एज अ वाटर बॉडीज कवर्ड नियरली 71% ऑफ इट्स सरफेस. अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ पे 71% वाटर है. वेयर डज द रेन वाटर गो? रेन वाटर कहाँ जाता है? सम रेन वाटर सीप्स अंडरग्राउंड. कुछ अंडरग्राउंड जाता है. वाइल सम जस्ट फ्लो इनटू द रिवर्स. कुछ वाटर रिवर्स के साथ फ्लो करते हैं. एंड स्ट्रीम विच कैरी वाटर टू द ओशन. रिवर्स और स्ट्रीम में जाते हैं जिनसे सारा वाटर ऑटोमेटिकली कहाँ जाता है? ओशियंस में. With the help of the diagram, give a detailed explanation of the hydrological cycle. Now, next question. With the help of diagram means आपको hydrological cycle का diagram बनाना है. Answer. The sun heats up the water bodies. The water evaporates as vapor. सबसे पहले क्या होता है? सन की हीट से वाटर वेपर बनती है. On reaching the higher, it cools and condenses into tiny water droplets that join to form clouds. फिर धीरे धीरे जब ये हाइट पर जाता है और वाटर वेपर ठंडी हो जाती है ना, तो ठंडी होने से ये ग्रुप बनाती है वाटर ड्रॉपलेट्स का, जिससे क्लाउड्स बनते हैं. When the clouds become too heavy, it come down as precipitation such as rain or a snow. The cycle is then repeated. जब
क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, मीन्स उनमें वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो एज अ रेन एज अ स्नो फॉल होते हैं, मतलब अर्थ पर गिरते हैं, और यही प्रोसेस रिपीट होता है. दिस इज़ नॉन एज